रिवीजन लेक्चर 1 फैक्टर का रिवीजन लेक्चर 1। फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। एग्जांपल मास, वेलोसिटी, डेंसिटी, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टेम्परेचर, mass velocity density, volume, temperature, a moment of inertia. Non physical quantity, the physical quantity which cannot be measured is called non physical quantity. For example, inertia, love, head, goodness, light. Inertia, love, head, goodness, light. Physical quantity two types, scalar and vector. Physical quantity two types, scalar and vector. Scalar, a physical quantity which have only magnitude, is called scalar physical quantity. Scalar follow simple addition. Example, mass, speed, how fast, mass, speed, temperature, electric current, work, energy, volume. Mass, speed, temperature, electric current, work, energy, volume. Mass, speed, temperature, electric current, work, energy, volume. Mass, speed, work, energy, temperature, electric current, work, energy, volume. Scalar physical quantity can be changed by changing its magnitude only. Scalar physical quantity can be changed by changing its magnitude only. Vector, a physical quantity which have magnitude as well as direction and also follow triangular law of vector addition. A physical quantity which have magnitude as well as direction and also follow triangular law of vector addition. For example, displacement, velocity, how fast and where. Displacement, velocity, how fast and where. Force, current, current density, torque, electric field. Force, current density, torque, electric field areas. Vector can be changed by changing its magnitude only or by changing its direction only or by changing by both. मैग्नीट्यूड चेंज करके, डायरेक्शन चेंज करके और दोनों को चेंज करके वेक्टर को चेंज कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन. Unit vector, magnitude into direction, a cap equal to magnitude of a, vector a equal to magnitude of a and direction into direction. A unit vector does not have any unit. Have only direction. A vector magnitude of a into a cap means unit vector. Unit vector represents only direction. For example, v equal to 10 meter per second. I cap represent direction. Important question of this one. Revision lecture 2, basic math, vector. Revision lecture 2. Graphical representation of a vector. ये एक वेक्टर है, वेक्टर की सीन है, इसको टेल बोलते हैं और हेड बोलते हैं. हेड का जो कार सीन है उसे डायरेक्शन दर्शाता है और वेक्टर का लंबाई मैग्नीट्यूड को दर्शाता है. जितना लंबा होगा उतना मैग्नीट्यूड उतना ज़्यादा होगा. पॉजिटिव एक्स एक्सिस को आई कैप बोलते हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस को माइनस आई कैप, पॉजिटिव पॉजिटिव वाई एक्सिस को जे कैप और नेगेटिव वाई एक्सिस को माइनस जे कैप बोलते हैं. वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम. वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह ले सकते हैं, उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मतलब लंबाई को सेम रखकर एक जगह से दूसरी जगह लेने से उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. बट रोटेशन ऑफ वेक्टर इज़ नॉट अलाउड. बट अगर वेक्टर को रोटेट किया तो इसका वेक्टर चेंज हो जाएगा. 360 डिग्री अगर रोटेट किया तो वेक्टर चेंज नहीं होगा. बट
60 डिग्री के अलावा और कोई एंगल से वेक्टर को रोटेट किया तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। वेक्टर को पैरेलल टू इटसेल्फ, जो वेक्टर है उसके पैरेलल और डायरेक्शन को एंड इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को सेम रखकर वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह बना सकते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच में से एंगल निकालने के लिए दो वेक्टर के हेड और दोनों वेक्टर का टेल जोड़ना पड़ेगा। टेल को जोड़ने के बाद एंगल निकाल सकते हैं। स्मॉल एंगल बिटवीन टू वेक्टर व्हेन दे आर प्लेस्ड हेड टुगेदर और टेल टुगेदर is called angle between two vector. These are examples like ये A वेक्टर एंड B वेक्टर, बट इसका हेड इसके टेल में लगा हुआ, ये नहीं होगा। इसका हेड में लगा होना चाहिए और या फिर इसका टेल में लगा होना चाहिए। तो हम इसका हेड इसका टेल में लगाने के लिए हमें इसका हेड और इसका हेड एक साथ करने के लिए इस वेक्टर को थोड़ा पीछे लाएंगे तो इस दोनों का हेड मिल जाएगा। तो इस दोनों का हेड मिलने के बाद हम ये तो 120 डिग्री है, मिलने के बाद दो स्मॉल एंगल निकाल सकते हैं। दो वेक्टर के बीच में से एक स्मॉल एंगल निकाल सकते हैं। Some forces are given below, then draw them in. So F1 equal to 10 Newton along east, 10 Newton along east, F1 10 Newton along east, या ये है F1। F2 20 Newton along north, 20 Newton along north, 20 Newton along north, ये तो F2। उसके बाद F4 50 Newton northwest, 50 Newton northwest, 50 Newton northwest, 50 Newton northwest, north and west, 50 Newton northwest. F5 10 Newton southwest, south and west, south and west, 10 Newton south and west, south and east, west में साउथ एंड ईस्ट। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। F1 इक्वल टू 30 न्यूटन 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। इस क्वेश्चन को करने के लिए जो लास्ट में है उस पर बैठ जाना है और पीछे की तरफ चलना है। उसमें बैठ जाना है और पीछे की तरफ चलना है, पीछे की तरफ। तो वेस्ट है, वेस्ट में बैठ गया और पीछे की तरफ साउथ में चलना है, साउथ में 60 डिग्री साउथ में। तो इसे वेस्ट में बैठकर 60 डिग्री साउथ की तरफ आना पड़ेगा। आके ये वेक्टर को लिखना है F1 30 न्यूटन। सेम ये क्वेश्चन भी सेम इसी तरह है। ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है सारे 3 वेक्टर। इसको हैंड राइटिंग में लिखना है। F1 8 न्यूटन, F1 8 न्यूटन, F1 8 न्यूटन 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ। F1 8 न्यूटन 8 न्यूटन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट ऐसे लिखना है। फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये भी एक एंगल का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ वेक्टर: पैरेलल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, एंटी पैरेलल, नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, नॉन करेंट वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, नॉन करेंट वेक्टर, एक्सियल वेक्टर।
पैरेलल फैक्टर मैग्नीट्यूड may or may not be same, magnitude may or may not be same, angle between them 0 degree, angle between them 0 degree. Equal factor magnitude same, theta 0 degree, direction same. Anti-parallel factor anti-parallel magnitude may or may not be same, or theta equal to 180 degree. Negative factor magnitude same and theta 180 degree. Orthogonal factor theta 90 degree. Co-linear factor theta 0 degree and 180 degree, theta 0 degree and 180 degree एक ही लाइन में होता है, दोनों फैक्टर एक ही लाइन में होता है. को प्लेनर फैक्टर इन सेम प्लेन, सारे फैक्टर एक ही प्लेन में होता है, एक ही प्लेन में होता है. जैसे कि ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है. इसमें अगर पी ए बी co-planar factor, but B, C and D, CD not co-planar factor. CD not co-planar factor. Zero factor magnitude 0, magnitude unit factor magnitude 1. Concurrent factor acting at same point, axial factor acting along the axis of rotation, perpendicular to the plane of rotation. Explanation of types of vectors. Parallel, equal factor, parallel factor, zero factor, collinear factor, coplanar factor, anti-parallel factor, unit factor, orthogonal factor, concurrent factor, and axial factor. रिवीजन लेक्चर 3 ऑफ फैक्टर. कंपोनेंट ऑफ फैक्टर का कंपोनेंट जिस तरफ का थीटा लेते हैं उस तरफ कॉस थीटा लिखते हैं, और जिस तरफ थीटा नहीं है उस तरफ साइन थीटा लिखते हैं. टू कैलकुलेट एंगल साइन थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए, कॉस थीटा इक्वल टू ए बाई ए वाई बाई ए, tan theta equal to ay by ax. This is only applicable for 2D. Sin theta and cos theta applicable for 2D and 3D. Sin theta and cos theta applicable for 2D and 3D. This is only applicable for 2D. एंगल जिस तरफ होते हैं उस तरफ cos थीटा लिखते हैं, और जिस तरफ एंगल नहीं होते हैं उस तरफ sin थीटा लिखते हैं. ये क्वेश्चन है कंपोनेंट लेने का. इस तरह ऐसे कंपोनेंट लेना होता है. कंपोनेंट लेने का क्वेश्चन है. ये रिजल्टेंट वेक्टर है, फोर्स इक्वल टू 50 न्यूटन. सो ये एंगल लिया है हमने. सो ये एंगल लिया है साइन 37. ये एंगल लिया है तो इस तरफ कॉस थीटा होगा 15 एफ इक्वल टू 50 न्यूटन. एफ कॉस 37 डिग्री इस तरफ होगा, और एफ वाई इक्वल टू एफ कॉस 37 डिग्री, एफ एक्स इक्वल टू एफ साइन 37 डिग्री. इस तरफ एंगल नहीं है इसलिए साइन आया, इस तरफ एंगल है इसलिए कॉस आया. मैग्नीट्यूड ऑफ फैक्टर. फैक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? फैक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये एक ए वेक्टर है. इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, ए का एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड निकल जाएगा. सम क्वेश्चंस टू फाइंड मैग्नीट्यूड. दीज आर सम क्वेश्चंस. फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फैक्टर ऑफ दिस क्वेश्चंस. डायरेक्शन ऑफ वेक्टर फ्रॉम एक्स वाई एंड जेड एक्सिस. ये एक रिजल्टेंट वेक्टर है. ये एक्स के साथ कितना एंगल किया है, वाई के साथ कितना एंगल किया है, एंड ये रिजल्टेंट ये वेक्टर जेड के साथ कितना एंगल किया है, कैसे निकलना है. इसको निकालने के लिए ए एक्स ये वेक्टर एक्स के साथ किया हुआ एंगल निकालने के लिए cos अल्फ़ा एक्स बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए करना होगा. ये वेक्टर y के साथ किया हुआ एंगल निकालने के लिए ए वाई बाई ए cos बीटा इक्वल टू ए वाई बाई ए लिखना होगा.
उसके बाद ये वेक्टर जेड के साथ किया हुआ एंगल निकालने के लिए ए जेड बाई ए कोस ए जेड बाई ए लिखना होगा। ए जेड बाई ए निकला होगा। एंगल बिटवीन जेड एंड ए एंड जेड एक्सिस, एंगल बिटवीन ए एंड एक्स एक्सिस, एंगल बिटवीन ए एंड वाई एक्सिस। तीनों एंगल को एडिशन और स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 आएगा। तीनों एंगल को अगर ऐड करके स्क्वायर किया तो cos स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 आएगा। वेक्टर का क्वेश्चन है, ये भी एक वेक्टर का क्वेश्चन है। एडिंग ऑफ टू वेक्टर इन टर्म्स ऑफ देयर of its component or direction, in term of its component or direction. Vector ax I k plus ay j k, b इक्वल टू bx I k plus by j k, दोनों को एडिशन करने के लिए a प्लस b करने के लिए दोनों का ax प्लस b x I k प्लस ay माइनस by j k करना होगा। ये है फॉर्मूला, ऐसे करना होगा। डायरेक्शन के साथ एडिंग करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा। फॉर एग्जांपल ए वेक्टर 2i के प्लस 3j के, बी वेक्टर 6i के प्लस 2j के, ए प्लस बी 8i के प्लस 5j के, ये भी है। ये डायरेक्शन के साथ एडिंग करना है। इस क्वेश्चन को डायरेक्शन के साथ वेक्टर को एडिंग करना है। ये भी, इसको भी डायरेक्शन के साथ एडिंग करना है। वेक्टर के साथ कुछ एडिंग करने वाला क्वेश्चन है। यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला है ए कैप इक्वल टू, फैक्टर को लिखना होगा और फैक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे लिखना होगा। फैक्टर को ऊपर लिखना होगा और फैक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे लिखना होगा। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करना होगा। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी करना होगा। एडिशन ऑफ फैक्टर, टू फैक्टर्स ए एंड बी आर गिवन, देन ए प्लस बी, फैक्टर ए प्लस बी, फैक्टर एडिशन ऑफ ए एंड बी, रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी विद डायरेक्शन के साथ। इसको दोनों का मैग्नीट्यूड को ऑफ ए एंड बी, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी, डायरेक्शन के बिना दोनों को पहले ऐड करके उसके बाद मैग्नीट्यूड निकाला। इसमें 3 नंबर में ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बाय ट्रायंगुलर लॉ के द्वारा वेक्टर एडिशन करने के लिए पहले फर्स्ट वेक्टर को बनाना होगा। उसके बाद फर्स्ट वेक्टर जहाँ ख़त्म होगा वही से सेकंड वेक्टर को बनाओ एंड फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड को मिला दो, वही रिजल्टेंट बताएगा। पहले फर्स्ट वेक्टर बनाओ, उसके बाद उसके बाद जो वही जहाँ से फर्स्ट वेक्टर ख़त्म होगा वही से सेकंड वेक्टर बनाओ और फर्स्ट वेक्टर के टेल और सेकंड वेक्टर के हेड को मिला दो, वही रिजल्टेंट बताएगा। फॉर एग्जांपल ए एंड बी 2 वेक्टर है। पहले ए को बनाया, उसके बाद यहाँ ए ख़त्म हो गए, इस ए से बी को बनाया, बी यहाँ पर आ गया और ए क्या टेल, फर्स्ट वेक्टर का टेल एंड बी सेकंड वेक्टर का हेड को मिला दिया, यही रिजल्टेंट है। ए प्लस बी इक्वल टू सी, यही भी है, ये भी है। अगर किसी वेक्टर्स को आगे पीछे करके जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट सेम आएगा। किसी वेक्टर को आगे पीछे, दिस इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दिस इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फॉर एग्जांपल ए बी सी 3 वेक्टर है, इन तीनों को आगे पीछे करके जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट सेम ही आएगा। ये ए को जोड़ा पहले, इस केस को ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस ए को बनाया, उसके बाद बी को ए के ख़त्म एंड से बी को बनाया, उसके बाद सी को बनाया, बी के एंड से सी को बनाया और फर्स्ट वेक्टर का टेल एंड लास्ट वेक्टर का हेड को जोड़ दिया और रिजल्टेंट आ गया। रिजल्टेंट ये थीटा बना एंगल,
नेक्स्टली बी प्लस सी प्लस ए, पहले बी को बनाया, पहले ये बी को बनाया, बी के एंडिंग से सी को बनाया, सी को बनाया, और सी का एंडिंग से ए को बनाया, और लास्ट फैक्टर का हेड एंड फर्स्ट फैक्टर का टेल को जोड़ दिया, रिजल्टेंट आ गया, और थीटा एंगल सेम आया, थीटा रिजल्टेंट, दैट मीन्स रिजल्टेंट सेम। ऐसा ही केस 3 भी ऐसा ही है, केस 4 भी ऐसा ही है। A vector 2i rotated by 90 degree anti-clockwise, then new vector will be, एक वेक्टर को 90 डिग्री क्लॉकवाइज 2i यहाँ पर था, जैसे 90 डिग्री रोटेट कर दिया, न्यू वेक्टर विल बी 2j कैप। A vector a equal to 2i cap plus 2j cap now rotated by 45 degree anti-clockwise, then new vector will be, step 1 find angle अकॉर्डिंग टू द फैक्टर, इस फैक्टर के अकॉर्डिंग एंगल कितना है, ये मतलब ये कहाँ पर है, इसको पहले निकालना होगा। तो इसका एंगल निकाल के इसको प्लेस करते हैं। 10 अल्फ़ा इक्वल टू और बाई एक्स इक्वल टू अल्फ़ा इक्वल टू 45 डिग्री, मतलब ये वेक्टर एक्स एक्सिस से 45 डिग्री में है, ये वेक्टर एक्स एक्सिस से 45 डिग्री में हो, और उसके बाद इसको फिर से 45 डिग्री रोटेट किया, तो ये वाई एक्सिस में चला गया, वाई एक्सिस में चला गया। उसके बाद इस फैक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला, मैग्नीट्यूड निकाल के उसके साथ जे कैप को ऐड कर दिया, ये डायरेक्शन ऐड कर दिया, बस आंसर निकल गया। जब किसी वेक्टर को रोटेट करते हैं तो मैग्नीट्यूड रिमेन सेम होता है बट डायरेक्शन चेंज होता है, तो इसीलिए रोटेट करने के बाद मैग्नीट्यूड निकाल के उसके साथ जे कैप लगा। कुछ क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस है। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टराइजेशन, इट इज़ नॉट जस्ट, इट इज़ पाइथागोरस लॉ। ये एंड बी दो वेक्टर गिवन है थीटा एंगल से, ए एंड बी दो वेक्टर, पहले ए वेक्टर को बनाया और ए वेक्टर को एंडिंग से बी वेक्टर को ए वेक्टर को एंडिंग से बी वेक्टर को बनाया। उसके बाद फर्स्ट वेक्टर ए का टेल एंड सेकंड वेक्टर बी का हेड को जोड़ दिया, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। बी का कंपोनेंट लिया बी cos थीटा एंड बी साइन थीटा, ये थीटा है इसलिए बी cos थीटा, इस तरफ थीटा नहीं है सो बी साइन थीटा। सो इन दोनों को ऐड किया। सो इसके बाद यहाँ पर इस ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस लॉ लगाया, पाइथागोरस लॉ। तो पाइथागोरस लॉ में तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी cos थीटा स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा स्क्वायर, इसको कैलकुलेशन करके ये रिजल्टेंट आया, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी cos थीटा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ट्वाइस ए बी cos थीटा। ये फार्मूला जब दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग होता है एप्लीकेबल है। इस फार्मूला में अगर थीटा 0 डिग्री हुआ तो cos थीटा इक्वल टू 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। तो इसको शॉर्ट में लिखने के लिए आर इक्वल टू ए प्लस बी लिख सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और स्क्वायर कट जाएगा तो आर इक्वल टू ए प्लस बी मैक्सिमम हो जाएगा। 90 डिग्री पर cos 90 डिग्री इक्वल टू 0 होता है, सो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, रिजल्टेंट रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। cos 180 डिग्री पे -1 होता है, सो रिजल्टेंट विल बी ए माइनस बी। रिजल्टेंट का रेंज मैक्सिमम ए प्लस बी एट 0 डिग्री, मिनिमम ए माइनस बी एट 180 डिग्री, मैक्सिमम ए प्लस बी एट 0 डिग्री, मिनिमम ए माइनस बी एट 180 डिग्री, थीटा 180 डिग्री।
Revision lecture 5 of vector. This is a questions. This is a questions. This is a questions. Note: if two vector of equal magnitude, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, एक्टिंग एट एन एंगल थीटा, देन इट्स रिजल्टेंट विल बी. जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो तब उसका रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट विल बी आर इक्वल टू ट्वाइस ए कॉस थीटा बाई 2, आर इक्वल टू ट्वाइस ए कॉस थीटा बाई 2, आर इक्वल टू ट्वाइस ए कॉस थीटा बाई 2, आर इक्वल टू ट्वाइस ए कॉस थीटा बाई 2. If theta 0 degree, r equal to twice a, theta 0 degree, theta 60 degree, r equal to root 3a, r equal to root 3a, root 3a. If theta 90 degree, r equal to root 2a, r equal to root 2a, r equal to root 2a. If theta 120 degree, r equal to a, r equal to a. जब थीटा 0 डिग्री होता है रिजल्टेंट डबल हो जाता है, रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड डबल. जब थीटा 60 डिग्री होता है रिजल्टेंट के साथ रूट 3 मल्टीप्लाई होता है, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ रूट 3 मल्टीप्लाई. एंड थीटा जब 90 डिग्री होता है रूट 2 मल्टीप्लाई होता है, और थीटा जब 120 डिग्री होता है आर इक्वल टू ए होता है. एग्जाम्पल क्वेश्चंस. सारे क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस हैं. नोट: जब भी दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर उनके बीच में आता है और बड़े वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बड़े मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर के पास होता है, बीच में आता है या फिर बड़े मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर के पास आता है. करेक्ट डायग्राम. रिजल्टेंट यहाँ पर है, ये एक वेक्टर यहाँ पर है, ये अनकरेक्ट है. रिजल्टेंट यहाँ पर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है. रिजल्टेंट ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है. रिजल्टेंट इधर है, ये इनकरेक्ट है. रिजल्टेंट इधर है तो ये भी करेक्ट है. रिजल्टेंट इधर है, ये इनकरेक्ट है. क्वेश्चंस. गिवन टू वेक्टर ए एंड बी का मैग्नीट्यूड ए से ज़्यादा है, बी का मैग्नीट्यूड ए से ज़्यादा है. ड्रॉ करेक्ट डायग्राम. ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कैसे करना होगा? पहले ए वेक्टर को बना लेता हूँ, पहले बी वेक्टर को बना लिया. बी वेक्टर को बनाने के बाद बी के एंडिंग से ए वेक्टर को बनाया. ए वेक्टर को बनाने के बाद ए बी का टेल एंड ए का हेड मिला दिया तो रिजल्टेंट आ गया. यहाँ पर अल्फ़ा छोटा है और थीटा बड़ा है, मतलब ए से दूर और बी के पास है, मतलब बड़े वेक्टर के पास और छोटे वेक्टर के दूर है. रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड यहाँ पर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो 45 डिग्री में है. Some questions. Revision of vector. This is an important question. This one is important question. Note: when we multiply a vector with a scalar, then its magnitude will change but direction remains same. When we multiply a vector with a scalar, then its magnitude will change but direction remains same. For example, a equal to minus 2i cap. So 2i cap को अगर स्केलर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4i cap हो जाएगा, मैग्नीट्यूड चेंज हो गया. अगर a equal to 2i cap, फाइंड minus 2a.
-2 है, -4 आई कैप। अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा और डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और डायरेक्शन भी चेंज होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, important questions. Note: resultant of two vector must be in the plane of two vector। मतलब एक वेक्टर ये एक वेक्टर, इन ए एंड बी दो वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट मस्ट बी इन दोनों के बीच में होगा। मस्ट बी इन द प्लेन ऑफ टू वेक्टर, इन दोनों वेक्टर के प्लेन में, मतलब इन दोनों के बीच में या बड़े वेक्टर के पास में होगा। मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स कैन गिव 0 रिजल्टेंट इज 2 फॉल्स। दो अनइक्वल वेक्टर कभी भी रिजल्टेंट 0 दे नहीं सकता, क्योंकि फॉर एग्जांपल +4 and 2, +4 and 2 रेंज निकाले तो वहाँ मैक्सिमम होगा 6, मैक्सिमम 6 होगा रिजल्टेंट 6, और मिनिमम रिजल्टेंट होगा यहाँ पर 2, तो 0 नहीं आया। अगर कोई भी ले दो वेक्टर में मिनिमम रिजल्टेंट 0 नहीं होगा, दो अनइक्वल वेक्टर का रिजल्टेंट कभी भी 0 नहीं होता है। मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर कैन गिव 0 रिजल्टेंट इज 3 वेक्टर। 3 अनइक्वल वेक्टर कैन गिव 0 रिजल्टेंट। फॉर एग्जांपल a = 5, b = 6 and c = 10। तो इन दोनों का रेंज निकाला 1 से 11 आया, तो 11 सी वेक्टर इसके बीच में है। सो जब रेंज निकालेंगे तो 0 आ सकता है। 10 यहाँ पर है, तो मिनिमम रेंज जब निकालेंगे, मैक्सिमम में नहीं होगा, मिनिमम जब निकालेंगे तब ये 0 हो सकता है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर कैन गिव 0 रिजल्टेंट इज 2। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, तब होना चाहिए। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो दो वेक्टर में भी रिजल्टेंट 0 आ सकता है। Which of the following combination of 3 4s can give 0 resultant? Which of the following combination of 3 4s can give 0 resultant? हमारा स्टेप बॉक्स, कोई भी दो वेक्टर को लो, उसके रिजल्टेंट के रेंज निकालो। रेंज में अगर थर्ड वेक्टर आए तो सम ऑफ ऑल 3 वेक्टर 0 हो सकता है। कोई भी दो वेक्टर लो और उसके रिजल्टेंट के रेंज में अगर थर्ड वेक्टर आया तो सम ऑफ ऑल 3 वेक्टर्स कैन 0 हो सकता है। एक क्वेश्चन है, इफ रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द वेक्टर। अगर दो वेक्टर का रिजल्टेंट कोई भी एक वेक्टर से परपेंडिकुलर हो। फॉर एग्जांपल ये दो वेक्टर है, इसमें से ए के साथ रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है। कोई भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट किसी एक वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर हो, तब हम उसे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, पाइथागोरस लॉ के हेल्प से उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। और एंगल निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। कंपोनेंट लेकर एक क्वेश्चन है, वेक्टर सब्सट्रैक्शन d = a - b = a + -b, d = a - b = a + -b। ए एंड बी दो वेक्टर है, तो ए वेक्टर को बनाया पहले, उसके बाद बी को -b बनाना है, तो उल्टा करके बनाना होगा। इस तरफ होगा ए इस तरफ, बी इस तरफ।
तो रिजल्टेंट ये है, रिजल्टेंट ये है। यहाँ से b का कंपोनेंट लिया, b साइन थीटा आया, एंगल है ये b साइन थीटा आया, और इस तरफ b cos थीटा आया। a एंड b cos थीटा कंपोनेंट ऑफ b cos थीटा, a एंड b cos थीटा एक दूसरे के ऑपोजिट है। सो a से b cos थीटा को माइनस करना होगा, तब ये वेक्टर निकलेगा, a वेक्टर निकल जाएगा और b साइन थीटा। और यहाँ पर पाइथागोरस लॉ यूज़ करके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा निकाला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा निकाला।